یسوع میں سب کو سلام. آج کرسچن ٹاکس میں ہمارے ساتھ دانش شمعون ہیں جن سے ہم بات کریں گے خدا کے کلام میں سے بت پرستی کے بارے میں، جو کہ بہت ایک اہم ٹاپک ہے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ بت پرستی کیا ہے، کیا بت ہمیں بچا سکتے ہیں. اس سے ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سیکھیں گے اور نیو ٹیسٹمنٹ میں اس کے بارے میں، اور بتوں کو پوجنے کا انجام کیا ہوگا اور اس کے نقصانات کیا ہیں. دانش بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی سسٹر میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ خدا کا شکر بھائی، میں بھی ٹھیک ہوں. ویلکم ٹو کرسچن ٹاکس. تھینک یو سو مچ سسٹر. دانش بھائی آج ہم بات کریں گے بت پرستی کے بارے میں کہ بت پرستی کیا ہے. سسٹر یہ آئی تھنک اٹس اے ویری اسینشیل ٹاپک اینڈ اٹ ہیز اے significance in our Christian life. Yes, of course. یہ جو آج کا ٹاپک ہے ہمارا، اس کے بارے میں کلام مقدس میں سے شیئر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ہمیں اپنے لوگوں کو بتانا اس کے بارے میں بہت ضروری ہے، تاکہ وہ اس چیز کے بارے میں سیکھیں اور ان چیزوں کو اپنی پریکٹیکل لائف میں لے کے کہ ہم نے بت پرستی سے کیسے کنارہ کشی کرنی ہے. تو جانا بہت ضروری ہے. ایسے ہی ہے سسٹر. تو اس کے بارے میں ہم اب دیکھیں، بائبل مقدس کے سٹارٹ میں ہی خدا باپ نے ہمیں بت پرستی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، کنارہ کشی کے لیے بتایا ہے. بالکل سٹارٹ میں بتا دیا گیا کیونکہ ایک اہم بات ہے جس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. ایسے ہی ہے. تو اس کے لیے ہم خروج کی جو کتاب ہے اس کو دیکھیں گے. اس کا 20واں باب ہے اور اس کی 3 سے 6 آیات میں بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے: میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3ری اور 4تھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں. آمین. اب سسٹر یہاں پر دیکھیں کہ غیر معبودوں کو ماننا جو ہے، ایک جو تراشی ہوئی مورتیں ہیں، جو بت پرستی ہے، ان کے بارے میں بائبل مقدس میں ہمیں یہی چیز بتائی گئی ہے کہ جو لوگ ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں، خدا باپ ان سے ان کی 3ری اور 4تھی پشت تک ان سے بدلہ لیتا ہے. اب ہمیں اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب آج اگر ہم کچھ کر رہے ہیں اور ہماری 3ری اور 4تھی پشت تک ہم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا، اور وہ بھی اسی چیز کا ان سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کے بڑوں نے یہ کیا ہے. یہ معاملہ چھوٹا سا نہیں ہے، بہت بڑی بات. اٹس اے کریٹیکل ٹاپک. اینڈ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک عہد بھی کیا گیا ہے. بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ ہزاروں جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں. اب خدا باپ ان پر رحم بھی کرتا ہے جو اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں. باپ کا حکم یہ ہے کہ تو اپنے لیے تراشی مورتیں نہ. بالکل سسٹر، بالکل ایسے ہی ہے. تو دانش بھائی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بت پرستی یہ ہے جب ہم خدا کے برابر کسی کو لے آتے ہیں، خدا کے شریک ٹھہراتے ہیں، کسی انسان یا شخص یا کسی بت کو خدا بنا لیتے ہیں، تو خدا کیا ہے؟ God is a jealous God. تو خدا غیور خدا ہے، اور کوئی بھی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اسے کسی جگہ پہ بلا کر، کسی دعوت میں انوائٹ کر کے اس کی جگہ پر کسی اور کو رسپیکٹ دے دی جائے. تو کیا اس شخص کا پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو دل نہیں کرے گا کہ وہ اس پارٹی کو، اس دعوت کو چھوڑ کے چلا جائے؟ تو کیا وہ اپنی جگہ پہ کسی اس شخص کو برداشت کرے گا؟ لیکن خداوند تو پھر بھی زندہ خدا ہے، تو تمام چیزوں سے اتم اعلیٰ اور سب سے زیادہ اہمیت ہماری زندگی میں رکھتا ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ عزت و جلال خدا کو دینے کی ضرورت ہے، نہ کسی بت کو. نہ تو اس میں سانسیں ہیں، نہ زندگی، نہ اختیار اس کے پاس ہے. تو دانش بھائی اسی کے حساب سے ہم دیکھیں گے سلاطین کی کتاب، اس کا 17واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں یہ لکھا ہے. سب سے پہلے یہ لکھا اس میں: اور اس عہد کو میں تم سے کیا ہے، اور اس عہد کو جو میں نے تم سے کیا ہے تم بھول نہ جانا. پہلے تو بات پرومس کی ہوگی کہ جو عہد میں نے تم سے کیا اس کو بھول مت جانا، اور نہ غیر معبودوں کا خوف ماننا. اب دیکھیے غیر معبودوں کا خوف ہے، کیا غیر معبود کو خدا یا اختیار رکھتے ہیں؟ نہ تو وہ زندہ خدا کی طرح ڈیوائن پاور ہے، نہ ان کے پاس کسی چیز کا اختیار ہے. اور خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا، اور وہ تم کو تمہارے سب دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑا لے گا. پریز دی لارڈ.
हालेलुया। तो दानिश भाई इसमें ये है कि खुदावंद ने सबसे पहले क्या कि इसको भूल मत जाना, मत और ये जाना। प्रॉमिस एक वादा है, मेरा हुक्म है कि बुतों को खौफ नहीं करना, क्योंकि वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सके। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। तो दुनिया में जो है हमारा कुछ नहीं कर सकता जब खुदावंद जिंदा खुदा हमारे साथ है। तो दानिश भाई ये बताएं आज हमें कलाम मुकद्दस में से क्या बुत हमें बचा सकते हैं? सिस्टर, पहले तो ये बड़ी क्लियर बात है कि बुत हमें नहीं बचा सकते। तो अब हम बाइबल मुकद्दस में से यिर्मयाह की किताब देखेंगे, उसका 2 बाब और उसकी 27वीं और 28वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में हमें ये मिलता है, जो लकड़ी से कहते हैं कि तू मेरा बाप है, और पत्थर से कि तूने मुझे जन्म दिया, क्योंकि उन्होंने मेरी तरफ मुंह ना किया बल्कि पीठ की। पर अपनी मुसीबत के वक्त वो कहेंगे कि उठ कर हमको बचा। अब देखें, ये जो लकड़ी के बनाए हुए स्टैचू होते हैं और पत्थर की बनाई हुई मूर्तें होती हैं, दीज आर द हैंडमेड थिंग्स। और क्या इंसान के हाथों की बनाई हुई चीजें इंसान को बचा सकती हैं? ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो ये अब खुदा की जात जो है वो हमें हर मुश्किल वक्त में संभालती है, खुदा हमारा ख्याल रखता है। तो बचाने की सलाहियत, कुदरत खुदा की जात के पास है। अब देखें, जब इस्राएली लोग जो थे मुल्के मिस्र में थे, मुल्के मिस्र में से उनको क्या बुत निकाल के लाए, और समंदर को 2 हिस्से जब किया तो क्या वो बुतों ने किया? और जो आसमान से खुराक मन की सूरत में बरसी, तो क्या वो ऐसा बुतों के पास करने की सलाहियत है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा सिर्फ और सिर्फ खुदा बाप की जात जो है वो कर सकती है, और उसके पास ही सलाहियत है कि वो कादिर है इन सब चीजों को करने पर। बेशक दानिश भाई, खुदा क्रिएटर है और रिक्रिएट करता है और बनाता है, इंसान को बचाता है। ऐसी उसके पास ये अथॉरिटी है। इंसान के पास, इंसान को कभी भी ऐसे खुदा और बुतों के पास नहीं जाना चाहिए जो उसने खुद बनाया। इंसान की बनाई चीजें उसे कब बचा सकती है? बल्कि इंसान को बनाने वाला खुदा है, इंसान को बचाने की कुदरत रखता है। ऐसे ही तो दानिश भाई, आज हम इसके साथ एक नुकसान भी देखते हैं। जैसे कि हम ज़बूर 16 देखें तो उसमें लिखा है, गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि इसके पीछे जो पर्पस क्या है बुतों के पास जाने का। लोग किसी पत्थर के बने बुत, किसी लकड़ी के बने बुत के पास अपनी मन्नतें, अपनी मुसीबतें, परेशानियां, या किसी शख्स को जादूगरी के साथ जाते हैं, उसके पास क्या करते हैं? अपनी परेशानियों का हल लेने जाते हैं, अपनी मुसीबतों का हल लेने जाते हैं, अपने जितने भी काम है जो उनसे हो नहीं पाते उनको करने के लिए किसी खुद से बढ़ के किसी शख्स के पास जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का क्या होगा? गैर मबूदों को पीछे भागने वालों का गम बढ़ जाएगा। इसी हवाले से हम देखेंगे यूहन्ना की किताब उसका 2 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है, जो लोग झूठे मबूदों को मानते हैं वो खुदावंद की शफकत से महरूम हो जाते हैं। अब देखिए कितना बड़ा नुकसान है। एक तो उनका गम बढ़ जाएगा, और दूसरा वो क्या होंगे? खुदावंद के जलाल से, खुदावंद की शफकत से, उसके रहम फजल और करम से महरूम हो जाएंगे। और उस शख्स की हालत कितनी ही खतरनाक और कितनी ही कह सकते हैं कि बुरी है, जो खुदावंद के जलाल से, उसकी शफकत से, उसके रहम और करम से महरूम हो गया। अब देखिए कि इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम घर में हैं तो सबको सब चीजें मिल रही हैं, और हमें एक चीज दूसरे बहन भाइयों की निस्बत ना मिले तो इट्स मीन कि हमें वो चीज हम हासिल नहीं कर सकते। और ऐसे ही कि जब हम बुत परस्ती की तरफ भागते हैं तो हम पर खुदा की शफकत का जो हाथ होता है वो उठ जाता है, और हम उससे दूर हो जाते हैं, ताकि खुदा जो है वो उसकी शफकत से हम दूर होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा हमारे साथ है तो हमें इन चीजों से दूर होना चाहिए, बुत परस्ती से। बिल्कुल दानिश भाई, बिल्कुल। जैसे कि हमने ओल्ड टेस्टामेंट में बुत परस्ती के बारे में सीखा, तो अब हम देखेंगे कि न्यू टेस्टामेंट हमें बुत परस्ती के बारे में क्या बताता है। सिस्टर, अब हम जब बुत परस्ती के बारे में न्यू टेस्टामेंट में से मत्ती की जो अंजील है उसका 4 बाब देखते हैं। तो जब उसकी 10वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ पर हमें यूं मिलता है, यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर।
आमीन। अब देखें, खुदावंद यीशु मसीह को जब आजमाया गया तो खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पे शैतान को ये जवाब दिया कि तू अपने खुदा को सिजदा कर। अब हमें भी ये चीज को अपनी जिंदगी में लाने की जरूरत है कि हमें सिजदा जो है, हमें अपनी जो परेशानियां हैं, अपनी मुसीबतों में सिर्फ वही एक पाक जात है जिसके आगे हमें सिजदा करना चाहिए। Because he is Jehovah Jireh God. Yes, that's true. प्रोवाइडर है और उसका वादा है कि प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे हमें ही। अपनी सारी जरूरतों को, परेशानियों को, मुसीबतों को हल लेके, अपने बोझ को लेके खुदावंद के पास जाने की जरूरत ऐसी है। तो इसी तरह से सर जब हम पहला क्रंथियो देखते हैं तो पहले क्रंथियो में हमें यूं मिलता है कि ए प्यारो बुत परस्ती से भागो। बिल्कुल दानिश भाई, सही कहा आपने। हमें बुत परस्ती से आज हमें तौबा करने की और दूर होने की जरूरत बिल्कुल, है। यूहन्ना के खत में भी लिखा है कि ऐ मेरे बच्चों, बुत परस्ती से भागो, क्योंकि ये एक आम चीज नहीं है। ये आसमान की जो तरीके की कुव्वतें हैं, ये उनका काम है और इंसान के पास डिवाइन अथॉरिटी है उस पे गालिब आने के लिए। तो आज हम मसीह यीशु में, खुदा के पाक रूह में ये अथॉरिटी रखते हैं कि हम शैतान पर गालिब आ सकते हैं। और बुत परस्ती एक ऐसी चीज है, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है। बिल्कुल, लोग हैबिचुअल हो जाते हैं। हाँ। हाँ, दस के मेरे वालिदैन ये करते थे, मेरे अजदाद ये करते थे, तो वो एक चीज आगे जनरेशंस में और जब हम दूसरों को बताते हैं कि हम ऐसे गए, वहां पर गए और हमारे लिए ऐसा हो गया, तो जब हम किसी दूसरे को बताते हैं तो इंसान जो होता है वो अपने फायदे के लिए सोचता है हर वक्त। तो जब इंसान किसी दूसरे सुनता है कि यार वो वहां पर गया और उसका काम हो गया तो मैं भी जाऊं, तो इट्स मीन कि हम दूसरे लोगों को दावत दे रहे हैं कि हम लगे हो, तू आप भी आओ। बिल्कुल दानिश भाई, हमें किसी भी शख्स के लिए ठोकर का बायस नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल ना किसी शख्स के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे कि अपनी निजात खो दे। ऐसे ही, क्योंकि जब हम खुदा को, जिंदा खुदा के जात को छोड़कर बुत परस्ती कर जाते हैं तो हम क्या अपनी सल्वेशन खो देते हैं। ऐसे ही। दानिश भाई, ये बताएं कि बुत परस्ती का अंजाम क्या है। सिस्टर, इसके लिए हम बुत परस्ती के इंजाम के लिए देखेंगे ज़बूर 97 और उसकी जब 7th वर्स को जब हम रीड करते हैं तो हमें यूं मिलता है, खोदी हुई मूर्तों के सब पूजने वाले जो बुतों पर फख्र करते हैं शर्मिंदा होंगे। आमीन। अब देखें कि खोदी हुई मूर्तें जो होती हैं, उनके जितने भी पूजने वाले हैं, बाइबल मुकद्दस ये हमें बता रही है, खुदा का कलाम बताता है कि वो शर्मिंदा होंगे। और एट द एंड ऑफ टाइम जब हमसे ये चीज के बारे में सवाल पूछा जाएगा कि आपने दुनिया में किया क्या, आप बुतों की पूजा करते रहे हैं, तो वो टाइम हमारे लिए होगा कि हम शर्मिंदा होंगे उस चीज से। तो आज वो टाइम है हमारे पास कि हम इस चीज से तौबा करें और खुदा की तरफ रजू लाएं, अपनी सारी परेशानियां खुदा पर छोड़ दें। वो आपकी परेशानियां, वो आपके दुखों में आपका सहारा है। बिल्कुल दानिश भाई, ठीक कहा आपने। थस्सलुनीकियों उसका पहला बाब यूं कहता है, जिसमें 9 में यूं लिखा है, तुम बुतों से फिरकर खुदावन की तरफ रजू हुए ताकि जिंदा और हकीकी खुदा की बंदगी करो। यानी कि हमें बुतों से, जैसे कि ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं कि लोग बहुत बुत परस्ती करते थे, न्यू टेस्टामेंट करंटली लोग बहुत सी करते हैं। तो जब बुत परस्ती को छोड़कर इंसान खुदा की तरफ, जिंदा खुदा की तरफ रजू लाता है तो खुदा का जलाल, शफकत और हर चीज को हासिल करता है। ऐसे एग्जैक्टली। तो दानिश भाई, इसके अंजाम में जो है मजीद हम देखेंगे कि इनका फाइनली जो है एंड पर इनका अंजाम क्या होगा। अब देखिए सिस्टर, लास्ट जो हम पढ़ेंगे वो मुकाशवा की किताब में से पढ़ेंगे। और जब हम मुकाशवा की किताब में से उसका 21वां बाब पढ़ते हैं और 8वीं आयत को जब पढ़ते हैं तो हमें बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा हुआ मिलता है, जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। आमीन। अब देखें, जो बुत परस्ती करते हैं उनका क्या इंजाम होगा। उनका इंजाम गंधक से जलने वाली झील में होगा। और वो ये मेरा ख्याल है कि जब हम इस चीज को पढ़ते हैं तो हमें ये सुनकर ही इन चीजों से दूर होना चाहिए। तो दानिश भाई, हमें इस हवाले को पढ़ने के बाद इस बात का खौफ कर लेना चाहिए, इस बात की समझ लेना चाहिए कि एक छोटी सी महज बात नहीं कि किसी लकड़ी के बुत, किसी पत्थर के बुत या किसी शख्स को खुदा बना लेने से क्या है कि हम अपनी परेशानियों का हल दुनिया में ढूंढ सकते हैं और मैरिट भी ये भी वो नहीं कर सकते, लेकिन ना ही हमें आखिरत में वो निजात दिला सकते हैं। इस तरह से इंसान दुनिया में गमज़दा होता है, क्योंकि लिखा है कि बुतों को पीछे दौड़ने पर वो गम बढ़ जाएगा, वो शर्मिंदा होंगे और क्या होगा, अपनी जात को भी खो देंगे। और सिस्टर, मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जब हम इन लोगों के पास जाते हैं, जादूगरों के पास जाते हैं, बुत परस्ती करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये रियलिटी है कि हमारे माइंड में हर वक्त एक परेशानी सी होती है
इंसान खुद परेशान रहता है कि यार Satisfaction नहीं है। मैं कर क्या रहा हूँ इस दुनिया में, मैं किधर जा रहा हूँ। मैं वो खुदा जो जिंदा खुदा है, जो मुर्दों में से जी उठा और जिसने कब्र पर फतह पाई, मैं उससे दूर हो गया हूँ और मैं जा किस तरफ रहा हूँ। बिल्कुल दानिश भाई, हमारा ज़मीर हमें एक दफ़ा वार्न करता है, और लेकिन डिसीजन हमें फ्री विल है, चूंकि हम मिली हुई इंसान होते हैं, We have freedom. इसीलिए फिर डिसीजन हमारा होता है कि हमें खुदा को तरफ जाना है या हमें बुत परस्ती कर जाना है। ऐसा ही है। तो आज जितने हवालाजात हमने ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट से पढ़े, इसको पढ़ने के बाद हर शख्स को ये जान लेना चाहिए कि बुत परस्ती महज एक छोटा सा अमल नहीं है, बहुत बहुत बड़ा और एक डेंजरस अमल है जो आपकी ईमान को, आपकी निजात को और आपकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाता है, और जो इससे बचना चाहिए हमें, और खुदा के कलाम को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए और डे बाय डे उसमें डेवलप करना चाहिए और उसमें जलाल पाते रहना चाहिए। Amen. Thank you so much for coming. We really enjoy to talk with you, And and I hope this conversation will be fruitful for every listener. Amen. Thank you so much.